وہ ہاتھ میں فون تھامے زخمی شیر کی طرح ہال کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر جانب سے آتی ناکامی کی کال سن سن کر اس نے خوبصورتی سے سجے ہال کمرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کوئی چیز وہاں ایسی نہیں تھی جو اپنی سابقہ حالت میں موجود ہو۔ صوفے سے لے کر شو پیس تک فرش پر الٹا ہوا پڑا تھا۔ پک اپ دی کال یو۔ ابھی وہ غصے سے فون کو سامنے دیوار پر مارنے ہی والا تھا کہ داخلی دروازے سے 4 سوٹڈ مستنڈے یونیفارم میں شکستہ نظریں فرش پر گاڑے نمودار ہوئے۔ گڑیا کہاں ہے؟ وہ برق رفتاری سے ان کے سر پر پہنچا۔ ایسے سر جھکائے کیا کھڑے ہو؟ میری گڑیا کہاں ہے؟ وہ دوبارہ قوت لگا کر دہاڑا۔ سر وہ اس کے عزلی غصے کو سوا نیزے پہ دیکھ گارڈز کی باضابطہ ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ واٹ وہ گاڈ ڈیم اٹ! وہ پوری قوت سے فرش پر فون مار کر گرجا۔ سر میڈم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بامشکل تھوک نکل کر ایک نے وہی خبر سنائی جو تب سے پل پل اس کے غصے اور اشتعال کی آگ میں پٹرول ڈال رہی تھی۔ تو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا اگر تم لوگ میری بہن کو ڈھونڈ نہیں پائے تو اپنا یوزلیس فیس دوبارہ لے کر میری نظروں کے سامنے مت آنا ورنہ تم لوگوں کو شوٹ کر دوں گا۔ بے بسی سے پاگل ہوتے وہ جیکٹ سے گن برآمد کر کے قبل اس کے کوئی بیوقوفی کرتا کسی نے پھرتی سے اس کا بازو تھام کر گن اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ وہ گن اندر جیکٹ کے جیب میں محفوظ کرتی مٹھیاں بھیجے آزاد کو اگنور کر کے گارڈ سے حکم انداز میں گویا ہوئی تو وہ حکم کی تعمیل کرتے پل میں رفو چکر ہوئے تھے۔ کیا کر رہے ہو وڑائچ؟ ماضی کی غلطی واپس کیوں دہرانا چاہتے ہو؟ تیز خونی نظریں خود کو گھور رہے آزاد کی طرف موڑی۔ جاسوس؟ کیا جاسوس؟ ہوش میں ہو تم؟ وہ تیز انداز میں بات کاٹ گئی۔ ہوش میں رہ سکتا ہوں میں؟ میری بہن غائب ہے۔ میری بہن؟ ہوش میں کیسے رہ سکتا ہوں میں؟ کیسے؟ وہ زور سے ستون پر مکہ جڑتا دبی آواز میں چیخا۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب تمہیں ہوش نہیں کھونا ہے، خود کو ہوش میں رکھنا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ انائنا نے ہولے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ کہیں نہیں مل رہی جاسوس۔ وہ پلٹ کر شدت جذبات سے بے دم ہوتا اسے اپنے اندر سختی سے بھینچ گیا۔ وہ اس وقت اس قدر ذہنی انتشار کا شکار تھا کہ چاہ کر بھی اپنے حواس معطل ہونے سے نہیں روک پا رہا تھا اور ہمدرد کا لمس محسوس کرتے ہی وہ اپنا ضابطۂ لازم کا عزم توڑ بیٹھا۔ انائنا نے بھی بنا مزاحمت اس کی پشت پر اپنے بازو پھیلائے تھے۔ اب ہم چھوٹے بچے نہیں رہے وڑائچ جو وہ ہم سے ٹکرا کر بازی لے جائیں گے۔ اب ہم سے ٹکرانے کی حماقت ان کی آخری غلطی ثابت ہوگی۔ تم خود کو سنبھالو، گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب اسے ڈھونڈ لیں گے، تم بس اپنا کنٹرول مت کھو۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط انداز میں بولی۔ ذوالنورین! دہلیز پر اسپاٹ انداز کے ساتھ نمودار ہوئے ذوالنورین کو دیکھ آزاد کے کسی حد تک نارمل ہوئے تاثرات واپس تن گئے۔ میری بیوی کہاں ہے آزاد وڑائچ؟ وہ باہر گارڈ سے سب سن آیا تھا اور اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا الٹ دے۔ ذوالنورین، میں گڑیا کو ڈھونڈ لوں گا، تم کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ بات کاٹ کر دہاڑتا ہوا اس کے مقابل آیا۔ اور جب حفاظت کرنے کے گٹس نہیں ہے تو ذمہ داری لیتے ہی کیوں ہو؟ وہ زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے اپنا اشتعال دبا کر گرایا۔ ذوالنورین بات سن۔ آزاد وضاحتی انداز میں آگے بڑھنے لگا کہ انائنا درمیان میں حائل ہوئی۔ تم دونوں میری سنو اس وقت۔ دو بھپرے شیروں کے درمیان میں دیوار کی طرح کھڑی جاسوس کا انداز ملتجلی نہیں بلکہ حکمیہ تھا۔ دونوں تھم کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ موقع ایک دوسرے سے دو ہاتھ کر کے وقت اور قوت برباد کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ ایک ہو کر حالات سے مقابلہ کرنا کا ہے۔ تم دونوں کا غصہ اور بے بسی اپنی جگہ جائز ہے لیکن اس وقت جذبات سے مغلوب ہو کر ریت کی طرح سرک رہے وقت کو ضائع کرنا سوائے حماقت کے کچھ نہیں۔ بے شک بعد میں ایک دوسرے کو چوراہے پر کھڑا کر کے شوٹ کر دینا، لیکن اس وقت دماغ کو حاضر رکھو۔ تم دونوں ہی اپنی جگہ بہت بہت مضبوط ہو، اسی مضبوطی کو بروئے کار لاؤ اور اس غلط فہمی میں تو مت ہی رہو کہ جاسوس نہیں جانتی اس مصور اور اس بزنس مین کے اندر کون بستا ہے۔ وہ مضبوط انداز میں کہتی آخر میں دونوں پر نظر ڈال کر کچھ ایسے جتاتے انداز میں بولی کہ دونوں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر پہلے ایک دوسرے پر پھر جاسوس پر ڈالی۔ اور بھولو مت، اتحاد میں بہت طاقت ہے اور دوستی کی طاقت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ دونوں کو جتاتی فون نکال کر دونوں کو میسج بھیجنے کے بعد فون کان سے لگائے کھلے دروازے سے تیزی سے باہر نکلی۔ وہ دونوں بذریعہ میسج موصولی ہدایت پر ششدر ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ تم لوگوں کو ایک چھوکری لانے بھیجا تھا؟ چھوکری کو پیدا کر کے پال پوس کر کے بڑا کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ اتنی دیر؟
साथ लाई लड़की को बेड पर डालकर जैसे वो लोग मुड़े, बाई इन पर बरस पड़ी। भाई रास्ते में कुछ, बस बस रहने दो, पहले ही आधे घंटे के काम को 4 घंटे में ख़त्म करके आए हो। मज़ीद वक्त बर्बाद मत करो और गोदाम के लिए रवाना हो जाओ, और जो माल तैयार नहीं सब तैयार करो, वक्त बहुत कम है हमारे पास डिलीवरी के लिए। भाई हाथ उठाकर इन्हें झड़कती खुद बेड पर सफ़ेद चादर में सरतपा छुपी वजूद की तरफ बढ़ी। चश्मे बदूर, आफरीन भाई, नगीना है नगीना। इस कमबख्त सलीमा ने बताया क्यों नहीं? हीरा छुपा रखा है तिजोरी में। चेहरे से कपड़ा हटाते ही बाई को हवस भरी आंखें चंदिया गईं। चेहरे पर मकरू चमक और पान से रंगे लबों का गलीज गहरी मुस्कुराहट ने फौरन अहाता किया। बाई, वो जमाल वड़ाइच की सीट और हमारा सारा माल खरीदने के लिए जो पार्टी तैयार हुई है, वो भी आपसे मिलना चाह रही है। शेरा उजलत में अंदर दाखिल होता हुआ बोला। लेकिन वो लोग तो 2 दिन बाद मिलने वाले थे ना? बाई फौरन बेहोश वजूद के चेहरे पर कपड़ा डालती हुई मुतफक्किर सी मुड़ी। हाँ बाई, लेकिन इन्होंने अभी कॉल की है। वो अभी 1-2 घंटे के अंदर आपसे मिलना चाहते हैं। अब बताएं क्या जवाब दूं? इनकार की सूरत में वो पीछे भी हट सकते हैं। शेरा ने लगे हाथों खदशा भी जाहिर किया। नहीं, ऐसे कैसे? तुम 2 घंटे बाद का वक्त तो कुछ ज़रूरी काम निपटा कर मिलते हैं उनसे। बाई फौरन तैयार हुई। बाई, वैसे ये कौन है? अपने काम से काम रखने वाली शेरा के सवाल पर बाई चौंकी। कुछ नहीं। तुझे तितलियों में दिलचस्पी तो है नहीं, सो तेरे काम की नहीं। यूं समझ ले, आज के मेहमानों से मुज़ाकरात तय पा गए तो इनका नजराना होगा। वह सर झटक कर खबासत से मुस्कुराती हुई हस्बे आदत पान निकालकर जबड़ों में दबाती आगे बढ़ गई। शेरा भी इसके हमरा था। नजराना? दरवाज़ा बंद करते हुए शेरा ने अजीब नज़रों से बेड पर सड़ता पा वाइट चादर से ढके वजूद को देखा। तू जासूस का नजराना देगी खूसट बुढ़िया? जानती नहीं तू मौत को मुट्ठी में बंद करके तड़पाने वाली बला को आईना जासूस कहते हैं। बेड पर बेहोश पड़ी नाजुक दोशीज़ा न सिर्फ बेदार हुई थी, बल्कि बाई को खूबसूरत अलकाबात से नवाजते हुई दांतों तले पीस भी रही थी। अब अवाम परेशान हो रही होगी कि याकूत जासूस में कैसे कन्वर्ट हो गई। सो माफ़ी अवाम, जासूस याकूत कभी नहीं बन सकती, क्योंकि 2-2 सनकी शेरों के बीच चटनी बनने का जासूस में स्टेमिना नहीं। पैर समेट कर बेड पर आलती मारती मारकर बैठी वो अपने मद्दाहों से मुखातिब थी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि जासूस यहाँ कैसे? तो ज़्यादा जहन पर जोर मत डालें। अगर आपकी ये समझ आना होता तो आप मेरी जगह जासूस ना होते। वो नखुवत भरे अंदाज में खुद कलामी करती पश्त बेड से टका गई। सो चलें, फ्लैशबैक मतलब पस मंज़र देख लेते हैं। वो गर्दन में दोनों हाथ डालकर आंखें बंद करती चंद घंटे के कबल के मंजर को निगाहों में ताज़ा करने चल दी। 3 बजे के करीब जब वो अपना एक नहायत ज़रूरी काम निपटा कर एवी मेंशन पहुंची, तो घर में भिड़की की तरह घूम घूम कर काम कर रहे मुलाजमी को फौज को देख इसका अपना दिमाग घूम गया था। हे, क्या चल रहा है यहाँ? एक मुलाजिम को ज़बरदस्ती ठहराकर इस अफरा तफरी की वजह दरियाफ्त की। मैम, आज सर की सिस्टर आ रही हैं, इसलिए सर ने घर की भरपूर सेटिंग चेंज करने के लिए कहा है। मौदिब अंदाज में जवाब आया। कौन, गुड़िया? मालूम नहीं मैम, मैं जाऊं? वो लाइल्मी का इजहार करती अब इजाज़त चाह रही थी। अनायना चंद पल वहीं खड़ी अफरा तफरी को बेमकसद देखते रहने के बाद याकूत को फ़ोन मिलाकर तस्दीक करती, इसे यूनिवर्सिटी में मौजूदगी की तस्दीक कर खुद इसे यूनिवर्सिटी लेने के लिए चल दी, क्योंकि बातों में याकूत ने इसे ये भी बता दिया था कि आज़ाद मीटिंग में फंस गया है, सो इसके गार्ड इसे पिक अप करने आ रहे हैं। बड़ा चिढ़ते हो ना वड़ाइच इस स्कूटर से? आज मैं तुम्हारी चहेती गुड़िया को इसी स्कूटर पर तुम्हारी आंखों के सामने लेकर एवी मेंशन में दाखिल होंगी, देखना। बड़ा है मेरे स्कूटर को स्टूपिड व्हीकल कहने वाला। यूनी गेट के पास स्कूटर रोककर हेलमेट उतारते हुए तनफ्फुर से बड़बड़ाई। ये 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 तो वड़ाइच की मस्टंडे नहीं, और ना एक गाड़ी वड़ाइच की है। अनायना अभी हैंडल लॉक करके याकूत को कॉल मिलाने का सोच ही रही थी कि याकूत को स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी में सवार होता देख बड़बड़ाई, और कबल इसके वो हरकत करती गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई थी। स्टूडेंट्स का हजूम ऐसा था, आवाज़ देना बेकार ही थी। तभी वो वापस हेलमेट चढ़ाकर स्कूटर इस गाड़ी के ताक़ुब में डाल चुकी थी। कुछ गड़बड़ का शक पर यकीन की मोहर तब लगी जब गाड़ी को बजाय एवी मेंशन या आज़ाद के ऑफिस के जाने मुड़ने के अलग ही जाने मुड़ते देखा। जासूस को जानते नहीं बेटा तुम, जान का जुआ लगाकर जासूसी की जाती है, और तुम बेवकूफ़ उसी के नज़रों के सामने उसी का शिकार उठाकर ले जा रहे हो।
बड़बड़ाती हुई इन्हें पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए चेहरा निकालकर अपनी जानिब देखता देख एक कच्चे रास्ते पर अपना स्कूटर उतार गई। और ठीक 7 मिनट बाद जासूस का स्कूटर जासूस समेत सड़क के बीचों बीच कुछ इस तरह खड़ा था कि आने वाले को एक्सीडेंट के रिस्क से जनाब के लिए गाड़ी न सिर्फ रोकना पड़ता बल्कि गाड़ी से गन समेत बरामद भी होना पड़ा। मरने का शौक हो रहा है क्या? 4 में से एक आदमी नहायत गैर भरे अंदाज में गरजा। नहीं रे बाबा, मारने के वास्ते हाथ बहुत खुजला रहे तेरे को, मार खाने का है तो बोल। वो हथेली खुजलाती हुई इत्मीनान से बोली। लेकिन इससे पहले मेरे को तू ये बता, तुम लोगों ने अपन के माल को उठाने का सोचा कैसे? वो कड़े तेवर लिए हनूज हेलमेट पहने बेखौफी से आगे बढ़ी। क्या मतलब? चारों ने चुंबे से एक दूसरे को देखा। मतलब ये रे ढक्कन, इस माल को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट अपन को मिला है। डील के लिए थोड़ी मचमच हो गई है अपन की झंगरों से, लेकिन आखिर में डील 2 लाख खड़ा रोकड़ा में डन हो गया। तभी अपन इधर काम पर आई है। तुम लोग कौन रे बाबा? वो मुकम्मल टपोरी अंदाज में बात करती चारों को भुचका कर अब मुंतजिर नजरों से इनका तारुफ जानना चाह रही थी। 2 लाख? लेकिन हमें तो बस 50,000 में डन किया है। इनमें से एक बड़बड़ाया। हिसाब नहीं आता तेरे का क्या रे? तेरे को तुम 4 50 50 50 50 हुआ ना 2 लाख। इससे चारों की अकल पर मातम किया। कहाँ का 50? हम चारों को मिलाकर 50 दिया है। एक बंदा तड़प उठा था। हा 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 हा, मतलब टोपी पहना दिया रे तुम लोगों को। वैसे तुम लोगों को मामू बनाया किसने? इससे जोरदार कहका लगाकर मुकाबिल का दिल जलाते हुए दरियाफ्त किया। हम अपने क्लाइंट से नाम पता नहीं पूछते, कीमत लेते हैं और काम करके कट लेते हैं। इसके लिए भी हमें कीमत और माल का हुलिया बताया गया था। वही आदमी वापस बिगड़े नकूश संग मुफस्सिल अंदाज में गोया हुआ। ओ, वो अपना हेलमेट बजाती सर को इधर उधर जंबिश देकर गोया इन पर अफसोस कर रही थी। खैर, अपन असूल की बहुत पक्की है। एक बार जिसके लिए हाँ कह दे तो फिर इस काम को अंजाम तक पहुंचाना अपन की जिम्मेदारी होती है। फिर इस काम की तो अपन ने पूरी कीमत भी एडवांस में वसूल की है, तो माल तो अपन ही डिलीवर करेगी। वो सर झटक कर फैसला कौन दो टोक अंदाज में कहती चारों को मुंह खोलने पर मजबूर कर चुकी थी। ऐसे कैसे? ये हमारा माल है। अपुन ने बोला ना, अपुन बहुत असूल पसंद है। अपुन के धंधे में असूल बोलता है और अपने धंधे का असूल है देखना अपने भाई बंदों के साथ भी कोई उलट पुलट फेर फेर ना हो। मतलब कि तुम लोगों ने अपन का 25% काम कर दिया लड़की को उठाकर। अब आगे का काम अपन खुद कर लेगी, लेकिन अपन अपने भाई बंदों का हक ना थोड़ी मारती है, ना किसी को मारने देती है। ये अपन के बंदे हैं, ये तुम लोग पंटर लोगों को काम कर बाकी रोकड़ा थमा देंगे और अपन लड़की को पहुंचा कर इन लोगों की खबर लेके आती है। इनकी हिम्मत कैसी हुई अपने भाई बंदों के साथ 2 नंबरी करने की? वो भपर कर सीट पर मुक्का जड़ती कुछ यूं गैर भरे अंदाज में गरजी कि मुकाबिल को बांधते ही बनी कि मुकाबिल इनकी सच्ची खैरख्वाह कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज है। सुन चिड़किट। अब वो चंद सानिया पहले आई जेब से बरामद हुए चारों हुक्म के मुंतजिर मोहतब खड़े बंदों की तरफ मुड़ी। सुन चिड़कुट। अब वो चंद सानिया पहले आई जेब से बरामद हुए चारों को हुक्म के मुंतजिर मोहतब खड़े बंदों की तरफ मुड़ी। ये लोग अपन के भाई बंधु हैं। इन्हें अड्डे पर ले जाकर 50 रोकड़ा साथ अच्छा खर्चा पानी दे, तब तक अपन डिलीवरी करके आती है। और तुम लोग टेंशन नहीं लेने का, सब अपने ही हैं। वो इनमें से एक की तरफ इशारा करके हुक्म देने के बाद इन चारों को मुतमिन करके खुद इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। लेकिन लड़की तो हम बोला नहीं रे बाबा, ये अपन का काम है। अरे तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ले जा इनको, अपन इनकी गाड़ी ले जाती है। तू इस जीप को लेकर निकल। वो बाकी तीनों को अपने साथ आने का इशारा कर वहां पांचों को हकदक छोड़ इनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुकी थी। इन लोगों को देखकर ही से अंदाजा हो गया था भाई ने हमेशा की तरह सबूत का वजूद मिटाने के लिए बजाय अपने बंदों के लोकल किडनैपर हायर किए थे। तभी इसने भी बड़ी चालाकी से इनके जहन के साथ खेलकर बड़ी आसानी से अपना रास्ता हमवार कर लिया था। बेहोश याकूत को एक महफूज मकाम पर पहुंचाकर एवी मेंशन को सिर पर उठा रहे दोनों शेरों को शांत करके याकूत की सलामती की खबर के साथ ठीक ठाक धमकी चिपकाकर वो अपने ही आदमियों की मदद से भाई के बंदों की बताई मतलूबा जगह पर पहुंचकर अब प्लान के मुताबिक लाल महल में आराम से बैठी थी। बोले तो ये थी पीछे की कहानी। अब आगे की कहानी देखने के लिए आगे देखें। अभी तो अपन चली अगला धमाका करने। फ्लैशबैक से वापस हॉल में लौटते हुए वो उछलकर बेड से नीचे आई थी।
साथ गले में रस्सी की तरफ लटक रहे दुपट्टे को निकाल कर पीछे बेड पर उछाला। फिर बड़े इत्मीनान से ब्लू लॉन्ग कुर्ती, जिसके दरमियान में बड़े बड़े बटन्स लगे थे, इन्हें बजाय खोलने के दरमियान से पूरी कुव्वत लगाकर 2 हिस्सों में बुरी तरह बेदर्दी से तकसीम किया और ये लॉन्ग शर्ट को फाड़कर कोट की तरह दूर उछालते ही असली जंगी जासूस मंजर आम पर आई थी। साथ पेट पर बंधी डोरी को खींचकर इसने पश्च पर बड़ी महारत से एक पैकेट में पैक जैकेट को बरामद किया। इस वक्त हकीकत देखने वालों को अपनी बसारत यकीन न आए जब इसने पैकेट को खोलकर जीन्स की जैकेट के अंदर से टैबलेट, छोटा सा रिमोट, देसी कट्टा और नाखून जितनी छोटी ब्लूटूथ को निकालकर बेड पर फैलाया था। तुम खूसट बुढ़िया बाई हो तो मैं आईना जासूस दी बला हूँ, जिसे तुमसे बहुत से हिसाबे बात करने हैं, जो मैं सूद समेत वसूल करूंगी। ब्लूटूथ कान में लगाने के बाद घुंघराले बालों से छुपाकर जैकेट के अंदर देसी कट्टा रखती, एक हाथ में रिमोट और दूसरे हाथ में टैबलेट लिए वो लहू रंग आंखों में एक तूफान से मोए बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। बड़ी आसानी से मास्टर की मदद से दरवाज़ा खोलकर लंबी सुनसान राहदारी से गुजरते हुए बाई के मेन हॉल में दाखिल होती, वो अलर्ट अलार्म का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूली थी। चारों जानिब अलर्ट अलार्म की गूंज के साथ मची भगदड़ की आवाज़ को सुनते हुए पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुराई, क्योंकि इस अलर्ट अलार्म का मतलब ही होता था जो जिस हालत में है 30 सेकंड के अंदर बाई के दरमियान में वैसे ही हाजिरी लगाए। 1 सेकंड की भी देर जिंदगी की आखिरी सांस लेने की मोहलत तक नहीं देती थी। वो नहायत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर इसी एहतियात से वापस मुकफ्फल करता कालीन पर फूक फूक कर कदम रखता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। इसी आदत को ध्यान में रखते हुए इसने बिना आवाज़ पैदा किए कबर्ड का डोर खोला और अंदर तरतीब से हैंग किए गए ढेरों ढेर हैंगर्स को इधर उधर करता वो काफ़ी उजलत भरे अंदाज में मतलूबा कपड़े तलाश कर रहा था। बीवी, कहाँ रख दिया यार नाइट ड्रेस? 2 बार तमाम हैंगर्स पर नजर घुमाने के बाद बुरी तरह झुंझलाया। जब से अनाया ने इसकी जिम्मेदारी बकौल अनाया के बेबी सिटिंग शुरू की थी, ताबिश अपने कबर्ड का हुलिया तक भूल गया था, क्योंकि इसके गंद फैलाने की आदत से बुरी तरह कायफ नफीस तबीयत लेडी बॉस खुद इसकी ज़रूरत की चीज़ें पहले ही नज़रों के सामने या हाथ में ला रखती थी। लेकिन रात 10:30 बजे, जो लेडी बॉस के मुताबिक बहुत लेट था, इस खूबसूरत हुलिये में महवे ख्वाह बीवी को जहमत देने का मतलब अपनी शामत आ बुलवाना। ये भला कैसी सीटिंग हुई? बंदे को अपने कपड़े खुद नहीं मिल रहे ढूंढने के लिए, इतनी दगो करनी पड़े। इससे बेहतर तो मेरी पुरानी सेटिंग थी। झट से खोला, फट से तलाश खत्म। वो एक और नाकामी पर बुरी तरह खाइफ होता मुंह बसूरने लगा। हाँ बिल्कुल, सेटिंग तो वो हुई जो डोर खोलने पर सारे धुले बगैर धुले, इस्त्री शुदा बगैर इस्त्री शुदा, डेली वेयर, पार्टी वेयर, नाइट एंड फॉर्मल सूट एक ही बार में मुंह पर आकर गिरे और कहें आप मौके की मुनासबत से खुद थोड़ी सी तकलीफ उठा लें। खफगी में डूबी तंजिया आवाज़ की समाज से टकराने पर ताबिश का बस नहीं चल रहा था कि किसी कबर्ड में खुद को अनारकली की तरह चुनवा दे। साइड हो जाएं और मौके मिलेंगे आपको मेरी सेटिंग का तफसीली जायजा लेकर कसीदा गोई करने के। इस वक्त मैं अपनी मेहनत की लाज रख लेती हूँ। वो बुरी तरह से इसे नज़रअंदाज करती खुद आगे बढ़ी थी। ताबिश के सियाना सा साइड पर हुआ और मजीद तब इस पर शर्मिंदगी हमला आवर हुई जब इनाया ने बिल्कुल ऊपर से ही ट्राउज़र एंड शर्ट निकालकर इसकी आंखों के आगे लहराया। शायद यही नज़रों के सामने था। बरहम आंखों में हल्के हल्के सुर्ख डोरे लिए नज़रों के सामने पर खसूसी दबाव डाला गया। हो जाता है यार, कुछ तो कहना था। अपने कपड़े थामते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक जुमला चिपकाकर छपाक से वॉशरूम में बंद हुआ। सीरियसली? अनाया इसके जुटाई पर तिल मिलाकर रह गई थी। इस शख्स का इंतजार ना करने और अपने वक्त पर सोने के हजार जतन करके वो हारी थी। सोने से पहले किसी गहरी नींद की गोली की तरह ताबिश की बेतुकी बातें सुनने की इस कदर बुरी आदत हो गई थी कि बेड का दूसरा गोश्ता नींद की देवी को पलकों पर मेहरबान होकर आंखों पर रहम करने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। और मोहतरम थे कि ऑफिस से वापसी के बाद फ़ौरन गायब हो जाते थे, जिस पर सुबह ही अंकल से ठीक ठाक ट्यूनिंग हुई थी। लेकिन बुरी आदतें भला इतनी आसानी से छूटती कैसे हैं? जान सकती हूँ मैं सवारी बादे बहारी कहाँ से इतनी लेट इस हसीन गेटअप में तशरीफ़ लाई है? जिसका डर था वही हुआ था। बेड का दूसरा गोशा जैसे ही आबाद हुआ, नाया का सवाल और मिसाइल की रफ्तार से मौसूल हुआ। यार बीवी, इसीलिए शायद लोग कहते हो बंदा शादी के बाद बाउंड हो जाता है, वरना इस हुलिये में मैं पहले मेरी हर दूसरे दिन वापसी होती थी। छोटी मोटी चोट हम लड़कों को लगती रहती है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। वो टांगे फैलाकर बैक वक्त टांग और कलाई का जायजा लेता कंधे अचका गया। हाँ, क्योंकि अक्सर लड़कों की शादियां ही इसलिए की जाती हैं कि वो राह रास्त पर आ जाएं।
अनाया साइड ड्रॉअर से मेडिसिन बॉक्स निकाल कर चबात कर बोली, अच्छा खासा जख्म था और मोहतरम इसे मामूली कह रहे थे। फिर आप मुझे अभी तक राह रास्त पर क्यों नहीं लाई? वो फौरन आंखों में चमक लिए मासूम हुआ, क्योंकि आप सुधरने वालों की कैटेगरी से बिलोंग ही नहीं करते। वो अपना काम करती जिता कर बोली, मैं बिलोंग तो करता हूँ, आप बाउंड करना नहीं जानती। मीन्स द बिजनेस वूमेन के अंदर इस बावरा बादल को बाउंड करने की गट्स नहीं है, वरना पापा आपका इंतखाब करते हुए बहुत पुरउम्मीद थे। खुद मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दी थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ बस वहम था वो सब। वो इसे हाथ के बाद पैर के जख्म साफ करता देख न जाने से क्या जताने की कोशिश कर रहा था। अनाया सुनकर अनजान बन गई। पेन किलर ले लें, नींद अच्छी आएगी। तब तक कल अंकल आंटी से जो झूठ बोलना है वो भी सोच लें। अपना काम खत्म करके वो संजीदगी से बोली। ताबी जवाबी कार्रवाई में टैबलेट मिलने पर हवन्नक शक्ल लिए से देखता रह गया। एंड मेरे गट्स के मुतालिक आप अभी से राय मत कायम करें, क्योंकि अनकरीब इस बावरा बादल को दरियाफ्त करके मैं आपकी राय बदलने वाली हूँ। वो घूमकर अपनी जगह पर राज हुई। एंड वन मोर थिंग, रिश्ता जोर ज़बरदस्ती से नहीं, जज्बातों एहसास साथ से निभाए जाते हैं, क्योंकि रिश्ता बांधते नहीं, ये खुद एक बंधन है। वो रुख मोड़ गई और ताबिश हवन्नक शक्ल लिए टैबलेट लेकर अपनी जगह दराज हुआ। आधे घंटे बाद वो अपने गिर्द गरम स्याह शॉल लपेटे एक मुतमिन नज़र पहलू में कंफर्टर के अंदर दुबक के सोए ताबिश पर डालकर अपना फ़ोन उठाती तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरती हुई इसकी नज़रें चारों जानिब घूम रही थीं। सीढ़ियों के बाद इसी एहतियात से मेन डोर अबूर करके वो ड्राइंग रूम वाले दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अयाना, कहाँ जाए? हाँ हूँ। गैर मुतवक्के तौर पर यारू की नौकीली आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी थी। यारू, आप सोए नहीं? बामुश्किल धड़कनों को हमवार करके वो सोफे की हत्ती पर विराजमान जासूसी नजरों से अपना जायजा ले रहे यारू की तरफ मुतवज्जे हुई। तुम नहीं सोए? यारू साहब का उल्टा ही आंखें सुकेड़कर मशकूक सवाल आया था। नहीं मम्मा, मैं सो गई थी, लेकिन ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। ऑफिस का काम तो आप जानते हैं अर्जेंट होता है। आफ्टर ऑल आप इतने इंटेलिजेंट जो हैं। वो इजाजत भरे अंदाज में यारू के करीब आकर इसकी पीठ से लाते पिचकारने के अंदाज में बोली, मी इंटेलिजेंट है? यारू साहब की आंखें बड़ी हुई। बिल्कुल, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए तो मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि मैं कहीं गई हूँ। वो यारू को हाथों में भर के इसका सर चूमती गोया यारू साहब को अपना पाबंद बना गई थी। अयाना, मी प्याला है? यारू साहब ले जाकर परों में छुपे। जी, आप बहुत प्यारे हैं। अयाना शहादत की उंगली से इसकी चोंच सहलाकर तेजी से बाहर निकली। ताबी, अयाना कहाँ है? कुछ देर बाद शर्मो हया का गलबा खत्म हुआ तो यारू साहब चोंच खुजाते हुए अपने जहन को जहमत देने लगे। रात के 11 बजे वो कमिश्नर अकबर के ऑफिस में इनके मुकाबले रखी कुर्सी पर तने नकूश के साथ बैठा इस पुरवकार और सच्चे फर्ज शनास ऑफिसर को रश्क भरी नज़रों से देख और सुन रहा था। प्लान के अकॉर्डिंग 2 दिन बाद हमें एक्शन लेने था, लेकिन बाई को लगता है भनक लग गई। वो अपना सब कुछ समेट कर रुपोश होने के फिराक में है, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं देना। इंशाल्लाह कल का सूरज बाई नामी जुल्मत के अंधेरे को निगल कर सही मानों में नए दिन के साथ बेदार होगा। फोन टेबल पर रखे हुए वसूख अंदाज में गोया हुआ। इंशाल्लाह, वो ज़ेरे लब सदके दिल से बोला। बरखोरदार, हमने कहा था हमें जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम लाजमी बिला तकल्लुफ़ आपको तलब कर लेंगे। वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की, ये आखिरी से ही। और रही बात आपकी सिस्टर की, तो आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। यूँ तो वो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ मेरी अपनी खुदगर्जी भी शामिल है। वो साफ गोई से बोला, ये मेरे कैरियर का पहला ऐसा केस है जिसमें बहुत से ऐसे किरदार इन्वॉल्व हैं जो वर्दी में ना होकर भी वर्दी का फ़र्ज और कर्ज अदा कर रहे हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैम। सोसाइटी की सेफ्टी सिर्फ वर्दी वालों की नहीं, बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को खुश असलूबी से निभाए तो बाई जैसे नासूर मुआशरे में ना जन्म लेना परवान चढ़ें। लेकिन अफसोस, अपनी चेयर संभालते हुए इन्होंने तासुर से सर हिलाया। खैर, बाई से आपकी स्पेशल मीटिंग फिक्स हो गई है। बाई के हर खासो आम जगह पर हमारे आदमी मोहतात अंदाज में पहले पहुंच चुके हैं। बस इंतज़ार है तो बाई का मीटिंग के लिए आप लोगों के साथ मसरूफ़ होने का, क्योंकि बाई बहुत शातिर है। पहले हरकत में आकर हम बाई को कोई इशारा नहीं देना चाहते। एंड
پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بھی کچھ کہنے لگے کہ اساد مؤدب انداز میں قطع کلام کر گیا. آئی ایم سوری سر، بٹ میں لوگوں کا مطلب کچھ سمجھا نہیں. آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بھائی کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوگی. وہ ایک قابل لائر کی بیٹی ہونے کے ساتھ بہترین بزنس وومین بھی ہیں. برسوں پہلے ان کی مدر نے بائی کے مائنڈ کے ساتھ کھیل کر اسی کی چال میں الجھایا تھا. آج وہ اپنے ماما کا ادھورا کام پوری کرنے کی خواہش مند ہیں. ایڈوکیٹ ناہید، یاد تو ہوں گی آپ کو. اینڈ آپ انایا کی بات کر رہے ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی وائف؟ آزاد اسپرنگ لگے کھلونے کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا. جی. وہ ہولے سے مسکرائے. آئی ایم سوری سر، وہ میری فیملی ممبر ہیں، میرے بھائی کی وائف ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا میں اپنی فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. وہ پیشانی مسلطہ فیصلہ کن انداز میں بولا. اس وقت میں ایڈوکیٹ ناہید کی بیٹی ہوں، نہ آپ کے بھائی کی وائف ہوں، نہ آپ کی فیملی ممبر. میری ماما نے اس کیس پر سالوں محنت کی تھی اور اسی کیس کے ثبوت بچانے میں وہ اپنی زندگی ہار گئی. سو مجھے حق ہے کہ میں اپنی ماما کا ادھورا کام پورا کروں. ڈور ناک کرنے کی زحمت کیے بغیر داخل ہوتی انایا کا لہجہ مضبوط اور اسپاٹ ہونے کے ساتھ دو ٹوک بھی تھا. آزاد چونک کر اس کی جانب مڑا. ہاں ینگ مین، بھائی کو شاید خبر ہو گئی تھی ایڈوکیٹ ناہید کے انویسٹیگیشن کی بھی، اور آپ کو بچانے کے لیے وصیت کے متعلق بھولے گئے جھوٹ کی بھی. تبھی انہیں دھمکے بھرے کالز موصول ہونے لگے. اس دن بھی وہ اپنے آدھے ادھورے ثبوت بینک لاکر میں رکھ کر ابراہیم صاحب کے ساتھ لوٹ رہی تھیں جب اپنے تعاقب میں بدماشوں کو دیکھ ان کی گاڑی ڈس بیلنس ہوئی اور وہ انایا کا ضبط سے سرخ چہرہ دیکھ لب بھیج گئے. ایڈوکیٹ ناہید والے حادثے کے بعد ہی بائک کے خلاف کیس باقاعدہ درج ہوا. کبھی اوپر نیچے ہو کر یہ کیس ٹیبل تک آیا، اور 1.5 سال سے میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں. شاید آج آخری دن ہے. سر، ٹھیک 12 بجے میٹنگ ہے. وہ ضبط نہیں کھونا چاہتی تھی تبھی بات بدل گئی. ارسلان اور رحان کی ٹیم وہاں آپ کے لیے موجود رہے گی. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. آزاد اب کے خاموش ہی رہا تھا. بائی کے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی سزا اس کے لائق نہیں تھی. اسے ایڈوکیٹ ناہید کے ایکسیڈنٹ میں موت کی خبر ملی تھی، لیکن اس کا تعلق بھی کہیں سے بائی سے جڑا ہوگا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا. سب کہاں مر گئے ہیں جا کر؟ سلیمہ بیگم بائی سے یاقوت کی لال محل میں موجودگی کا سن مسرور سی لال محل میں داخل ہوئی تھی، لیکن پورے لال محل میں موت کا سناٹا دیکھ ان کی خوشی حیرت میں بدل گئی تھی. اماں نے اپنی تتلیوں کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے. دیکھو مہارانیاں سارا کام دھندا چھوڑ کر نہ جانے کہاں مری ہوئی ہیں. لگ تو ایسے رہا ہے جیسے پورے لال محل کو قبرستان میں بدل دیا گیا ہے. راہداری سے گزرتے ہوئے کھلے خالی کمروں میں مغلقات بکتی ایک ایک نظر ڈال پلو سنبھالتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. بھائی سب اکٹھے فوت ہو گئے ہو، اتنا سناٹا کیوں ہے محل میں؟ کئی مربع پر پھیلے محل میں موت کا سناٹا اب سلیمہ بیگم کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا. شاید اماں نے حاضری لگوائی ہے. محل کے آخری حصے سے دبی دبی چہ مگوئیوں کی آواز تیز سماعت سے ٹکرانے پر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی. کیا چل رہا ہے یہاں؟ کشادہ ہال میں پورے لال محل کا ہجوم جمع دیکھ سلیمہ بیگم حسب عادت دھڑک کے بل چیخی. پارٹی چل رہی ہے ساسو ماں، اور ڈی جے کے لیے میرے ذہن میں آپ ہی کا نام پھٹا اسپیکر تھا. وحشت کے سناٹے کو چیرتی ہوئی جاسوس کی مطمئن آواز گونجی. ساتھ ہجوم چھٹ کر مطلع بھی صاف ہوا. تم؟ بائک کے جھولے پر جوتوں سمیت براجمان ہستی کو دیکھ سلیمہ بیگم کی آنکھیں پھٹیں. جھولے پر بیٹھی نائنہ کے لبوں کا زہر خندہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا. جی ساسو ماں، ذرا ٹیگ لائن سٹائل میں کہتی ہوں. وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتی جھولے کو آگے پیچھے کرتی حرکت دیتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی. یہ تمہاری کھوسٹ بڑھیا اماں کے جھولے پر بیٹھی، میں یعنی آپ کی چہیتی بہو. یہ تیری اماں کا ضلالت خانہ یعنی لال محل ہے، اور یہاں پارٹی؟ وہ جھولا روک کے آگے جھکی. بالکل نہیں ہو رہی، کیونکہ یہاں موت کا کھیل چل رہا ہے. فضا میں چھوٹے سے ریموٹ والا ہاتھ بلند کر وہ مزے سے بولی. مطلب؟ سلیمہ بیگم ایک جسٹ میں اس کے سر پر پہنچی. مطلب یہ ساسو ماں، یہ جو میرے ہاتھ میں چیز نظر آ رہی ہے نا؟ اس نے اپنا ریموٹ والا ہاتھ آگے کیا تو ہال میں موجود سانس روکے کھڑے ہجوم میں خوف کی لہر دوڑی. یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ چٹکیوں میں انسان سے میرے پورے رنگلی بما لال محل کے چھیتڑے اڑا سکتی ہے. کیونکہ وہ ریموٹ کو دوسرے ہاتھ میں اچھال کر حاضرین کا کلیجہ منہ کو لاتی لہجے بھر کو رکی. رنگلی باشمول لال محل کے چپا چپا میں نے بومب فٹ کیا ہوا ہے. ادھر ذرا سی کسی نے میری بات ماننے میں آناکانی کی، ادھر میرے ہاتھ سے بٹن دبا اور بوم. سب کا قصہ بولے تو خلاص.
रिमोट को हवा में उछालकर सबके चेहरों पर मौत का खौफ देख इसने मजे से वापस रिमोट कैच किया। क्या बकवास है? सलीमा बेगम का चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ा। खुश खलक से आवाज़ मुश्किल ही बरामद हुई थी। बकवास नहीं है ये सासू माँ, वो क्या है ना, आपके इस मगरूर बेटे से मैं तंग आ चुकी हूँ। आपने कुछ सिखाया ही नहीं इसे सिवाय हुक्म साजिश करने के और गरूर से गर्दन में बल डालने के। रूठेपन से मुंह बसूरते हुए वापस कदमों तले मखमली पायदान को रोनती आगे पीछे होने लगी। हर वक्त मैं वड़ाई छूँ की तड़ियाँ मारता रहता है। बस तंग आकर मैंने सोचा खुदकुशी करके जान छुड़ा लूँ। फिर सोचा अकेले क्यों मरूँ, सब गम भुलाने के लिए रंगली जाते हैं, फिर मैं दुखों की मारी के जाने में क्या कबाहत है, मैं भी वहीं जाकर एहतमाम से इज्तिमाई खुदकुशी करती हूँ। सो आ गई। रिमोट एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते हुए संकी जासूस तो इत्मीनान से जैसे कोई किस्सा सुना रही थी, लेकिन हाजरीन को अपनी जिंदगी की कहानी का दी एंड इसके हाथ में नजर आ रहा था। लेकिन सोचें मैं कितनी खुशकिस्मत बहू हूँ, मेरी सास मेरे साथ सफरे लहद बांधेगी। वो खुशी से उछलकर खड़ी हवंदक फक चेहरे के साथ खड़ी सलीमा बेगम के करीब आई। लेकिन मैं कैसे मान लूँ? अम्मा की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि अम्मा की इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी लाल महल तो क्या रंगली के आसपास भी पर नहीं मार सकता। वो अपना खौफ छुपाकर कोकले अंदाज में तन कर खड़ी हुई। अम्मा की सिक्योरिटी, हा, मतलब एक पैर कवर में लटकाए खुद को जवान बांकी कवारी छोड़ी समझ कर लश्कारे मारने के चक्कर में कमर तोड़ने वाली घुसट पुड़िया की बात कर रही हो? हा। बाई की शान में रद्दुल लिसान होती वो पीछे चेहरा गिराकर हंसी तो हंसती चली गई। मौत के खौफ से माहौल पर ऐसी दबीज खामोशी की चादर तनी थी कि इसका तमस्कर भरा लहजा कहका पूरे ख्याल में गूंजा था। सलीमा बेगम का चेहरा बैक वक्त खौफ से सफ़ेद और तौहीन से सुर्ख हो रहा था। सासू माँ, तेरी अम्मा की ना उम्र हो गई है, लेकिन वो बुढ़िया इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज मान जाएगी, क्योंकि बुढ़ी घोड़ी जो लाल लगाम लगाए इतराती घूमती है ना, इसके लिए हमने बड़ा सा जाल बनाया है जिसमें वो खुद मर्जी से फंसेगी। यकीन नहीं है तो ये देखो। कहने के साथ ही इसने अपने जैकेट के अंदर से टैबलेट बरामद करके स्क्रीन सलीमा बेगम के आगे की, जिसमें बाई शेरा के साथ एक नीम अंधेरे कमरे में बैठी कोई बात कर रही थी। अंधेरा सादा होने के बावजूद वो अंगूठी से बाई को पहचान चुकी थी। इतने में ही फौत मत हो जाइए सासू माँ, अभी तो एक और मंजर रहता है जिसने इन तितली कबूतरों की बोलती बंद की है। हजूम पर एक मुतनफ्फिर निगाह डालकर इसने वापस स्क्रीन पर एक मैप को रोशन किया, जिस पर जगह जगह रेड क्रॉस का निशान लगा था। ये जो खतरे के निशान आप गिन भी नहीं पा रही ना, इस रंगगली समेत इन सारी जगहों पर बॉम्ब फिट है, जो इस रिमोट की मदद से रंगगली का नामो निशान मिटा सकते हैं। टैबलेट वापस अंदर रखकर इसने रिमोट को बरामद करके सलीमा बेगम की साकित पुतलियों के आगे लहराया। अब भाई किस शाही फरमान का इंतजार है? दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाओ। और कोई आकर मौत का मंजर देख रही मेरी सासू माँ को संभालो जरा। वो वापस झूले के पास जाकर रिमोट अंदर डालती ताली बजाकर बोली। और इस वक्त सबकी हैरत और बेयकीनी की इंतहा नहीं रही जब इसी हजूम में से 1/3 हिस्सा अफराद छुटकर एक जानिब जा खड़े हुए थे, जिनमें 3 हिस्सा मर्द और चंद एक लड़कियां थीं, जो तेजी से बर्फ का मुजस्मा बनी नायना को देख रही सलीमा बेगम को पकड़कर सतून से बांधने लगी। ऐसे आंखें फाड़े क्या देख रहे हो यार? ये मेरे लोग हैं जो यहाँ रंगलियाँ मनाने नहीं बल्कि रंगली का रोला मुकाने आए हैं। वो सबको हक तक देख नाराज लहजे में बोली। चलो अब ना मर्दों में ना जिंदों में शुमार लोगों को एक कमरे में बंद करो, बस मेरी सासू माँ को मेरी नज़रों से ना ले जाना। वो बाकी लोगों को हुक्म देकर सतून से बंदी सलीमा बेगम को देख लगावट से यूं बोली जैसे जी जान से प्यारी सासू माँ हो इसको। वो लोग मैप का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम समेत शहर से बहुत दूर जंगल में निकल आए थे। जंगल में एक मखसूस पेड़ के पास रुककर इन सबका लीडर एसपी अहान अली टॉर्च मुंह में दबाकर नीचे दोजानों बैठा था। ऊपर से सूखे पत्तों की तह हटाकर इसने साइड से एक सूखी लकड़ी उठाई और इस जगह की मिट्टी को खोदना शुरू किया। सब खामोशी मगर मुतजस्सिस नज़रों से इस कार्रवाई मुलाहिजा कर रहे थे और इस वक्त हकीकतन सबके मुंह खुले के खुले रह गए जब मामूली सी मिट्टी की परत हटाकर अहान ने एक लोहे का बेज़वी शक्ल का दरवाज़ा न सिर्फ बरामद किया बल्कि जोर डालकर सुलंग का दरवाज़ा भी खोल दिया था। बाई नज़र में नहीं आती क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर से ज़्यादा ज़मीन के नीचे की तिजारत करती है, जिसके लिए इसने अपने रास्ते बना रखे हैं। फिर कानून के रखवाले तो हैं ही इसके बेदाम गुलाम।
तो इन रास्तों की खैर खबर कौन लेगा? नाउ हरी अप। वो ढक्कन साइड पर हटाकर खुद अंदर दाखिल होता हुआ बोला। फिर एक एक करके सब इसमें दाखिल हुए थे। अब आहान आगे आगे था और बाकी सब कतार में इसके पीछे, क्योंकि इस तंग सुरंग से बामुश्किल एक आदमी के गुजरने की ही जगह थी। यार भाई, ये बाई है या ऑटम बम बुढ़िया? इसने तो हर जगह अपना दबदबा जमा रखा है। मैं तो कहता हूँ इसका दिमाग निकाल कर ना नासा वालों को रिसर्च के लिए देना चाहिए। कितना चलता है? आहान के ताकुब में पूरी टीम के साथ टॉर्च की मदद से अंधेरी सुरंग से गुजरते हुए अरसलान की जुबान खुजलाई। हम ड्यूटी पर हैं इंस्पेक्टर अरसलान, सो बी प्रोफेशनल। आहान पलटकर सरजनिश करने के अंदाज में बोला। यस सर। अरसलान खज्जल हुआ। आधे घंटे की तवील मुसाफत के बाद एक ठीक वैसा ही लोहे का दरवाज़ा आखिरकार इन्हें नज़र आया था। सर, ये तो डोंट वरी, आज बाई के किस्मत के दरवाजे बंद होने वाले हैं, सो हमारा हर दरवाज़ा खुला है। आहान कदा कलाम करता आगे बढ़ा और एक मामूली से धक्के से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जो कोई तय खाना था। हर 100 वाट का सुनहरा बल्ब रोशन था और बड़े बड़े सील पैकेट तरतीब से रखे हुए थे। अपर कमिश्नर सर के भेजे हुए लोग बाई के साथ मसरूफ़ हैं। हम उधर जा रहे हैं अरसलान, तुम अपनी निगरानी में यहाँ का काम निपटा कर अपनी टीम के साथ इस मैप की मदद से आगे बढ़ो। आहान मैप अरसलान को थमाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। देखो भाई, मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ का तुमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये चूँ करे तो फ़ौरन इनका इलाज करना है। कैसे, जानते तो हो ना? ऐसे ऐसे कहते ही इसने हाथ में पकड़े ब्लेड से सलीमा बेगम की कलाई पर कट लगाया था, जिसे वो बुरी तरह बिलबिलाकर चीखी थी। ना ना सासू माँ, चीखना नहीं, क्योंकि इसके लिए भी मैंने इनाम मुंतखब किया है। वो खून आलूद ब्लेड सलीमा बेगम के लबों पर लगती मुस्कुराई। वो सासू माँ, बात असल में ऐसी है कि हर चुड़ैल सास की बहू की ख्वाहिश होती है कि वो अपने सास की जुबान खींच ले, लेकिन मैं हसरत का बोझ उठाते हुए जीने वालों में से कतई नहीं हूँ। तो भाई ये लो ब्लेड। अगर मेरी सासू माँ की दोबारा चीख निकली तो जुबान खींचना मत, बल्कि इसे बरोए काट लाना। वो ब्लेड अपने मातहत को थमाते शफाकियत से बोली। और इनकी हर चूं पर इन्हें इनाम देना। जख्म देखने में छोटा मगर गहरा हो। इन माँ बेटियों ने बहुत से मासूमों की रूह को छलनी किया है। इनकी रूह बिलबिलानी चाहिए, वरना तुम्हारी रूह बिलबिलाएगी। वो हिदायत तो अपने मातहत को दे रही थी, लेकिन नज़र लब भेजकर अपने करार रोक रही सलीमा बेगम पर थी। न जाने इस औरत के नाम पर धब्बा औरत ने कितने मासूमों की ऐसी सिसकियां दबाई थीं, कितनों के घर उजाड़े हैं, कितनों की गोदें वीरान की हैं। इन पर रहम खाने की सूरत तुम पर कोई रहम खाने वाला नहीं होगा। वो एक जब्त से सुर्ख अंगारे उगलती नज़र इस घटिया औरत पर डालकर मुड़ी। बाई के झूले के नीचे मौजूद मखमली पायदान को एक जानिब उछालकर इसने दूसरी ब्लेड की मदद से फर्श पर मुस्ततील नुमा निशान बनाया और फर्श को हटाकर इसी शेप का ढक्कन हटाकर तय खाने का दरवाज़ा खोलती अपनी टीम की तरफ मुड़ी। इसका इशारा मिलते ही सब तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और आखिर में वो अंदर उतरी थी। मैं अनायना कयूम हूँ, इस कयूम की बेटी, जिसकी एक सबूत मिटाने के लिए तुम लोगों ने पूरे ख़ानदान को मिटा डाला। ढक्कन उठाते हुए सुर्ख आंखों से वो तड़प रही सलीमा बेगम पर एक और दिलसोज इंकशाफ करके ढक्कन बंद कर गई थी। ये बाई की सल्तनत का असल है, और जो दीवार पर तरतीब से 3 बेज़वी शक्ल के ढक्कन नज़र आ रहे हैं, वो दर हकीकत रास्ते हैं। इसने दूर दीवार पर नस्बे आम से ढक्कन की तरफ इशारा करते हुए बोली। दरमियान वाला रास्ता यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगल के तय खाने में, दाएं जाने वाला 35 किलोमीटर दूर नदी किनारे और बाएं जाने वाला लाल महल के बाहर निकलता है। वो तफसीलात से आगाह करती हुई आगे बढ़ रही थी। तय खाना लाल महल से कई ज़्यादा कशादा और पुरस्रार था। हर जानिब लोहे के दरवाजे नस्ब थे, जिसे सब तजस्सुस और इश्तियाक से देख रहे थे। बाई ने बहुत होशियारी से महल को राजा महाराजाओं के तरीके से बनाया है। यहाँ का हर दरवाज़ा इसके नए जुर्म की दास्तान को अपने अंदर कैद किए हुए है, और वो आखिरी वाले दरवाजे के अंदर इसने तेज़ाब की नदी बना रखी है। बस इस जानिब की बजाय चारों जानिब फैल जाओ, कुछ देर में और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। कम ऑन क्विक। वो ताली बजाते खुद भी एक जानिब बढ़ गई। बाकी सब भी मुकम्मल हरकत में थे। हम बिजनेस से मुंसलिक लोग हैं। माल इन आउट करना हमारे लिए बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हमारी डील की शर्त सुनकर आपको मसला हो सकता है। बाई के ऐन मुकाबिल बैठी लड़की की आवाज़ गूंजी, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से वो अपने दोनों मेहमानों का चेहरा नहीं देख पाई थी। कैसी शर्त? बाई उलझी। पिछले आधे घंटे से ये दोनों इसे मुसलसल घुमाए जा रहे थे।
بتایا تو ہے کہ ہمیں آج اور ابھی مال چاہیے، باقی پیمنٹ آپ کی مرضی سے ہوگی، کیش چیک جو بھی، بٹ سیٹ کے آگے ہمیں اپنا رازدان بھی بنانا ہوگا۔ وہ سرسراتے لہجے میں کہتا آگے کو جھکا۔ لیکن ایسا کوئی سودا نہیں ہوا تھا۔ بائی نئی شرٹ سے تذبذب ہوئی۔ بائی صاحبہ، ہم بزنس مین لوگ کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے بھروسے کی سیڑھی بناتے ہیں، کیونکہ بھروسے سے بڑا ایگریمنٹ کچھ نہیں ہوتا، اور جس طرح ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ لوگ ہمیں یہاں لائے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے آپ بخوبی سمجھتی ہیں۔ آزاد اپنا ہدف سامنے دے کمشنر اکبر کی ہدایات یاد کر بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ابھی کہ ابھی اس عورت کو گولیوں سے بھون کر رکھ دے۔ دیکھیں بھائی صاحبہ، ہم آج سے نہیں پچھلے 7-8 ماہ سے آپ سے جڑے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ روبرو ملاقات کا اتفاق آج ہوا ہے، لیکن جب ہو ہی گیا ہے تو ٹرسٹ ایشو سالو ہو جانا چاہیے۔ انایا آزاد کو ضبط کھوتا دیکھ خود تحمل سے بات سنبھالنے کے انداز میں بولی، لیکن میں جس کام کو وہیں تک رکھتی ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ بائی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس ڈیل کو آپ کینسل ہی سمجھیں۔ آزاد ضبط کے باوجود بھپڑ کر کھڑا ہوا۔ اپنے چہیتے اوزار سے ڈیل کے بارے میں کیا خیال ہے بائی صاحبہ آپ کا؟ قبل اس کے بائی کچھ کہتی، عقب سے ابھری آواز پر جہاں کے تہاں ساکت رہ گئے۔ لیکن یہ کیا؟ عقب پر تو کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب اندھیرا اتنا بھی نہیں تھا کہ ہولا تک نظر نہ آئے۔ بائی سمیت آزاد اور انایا نے بھی آنکھیں پھاڑ کر اس بھاری پر اسرار آواز کے مالک شخص کو اس اندھیرے میں تلاشنا چاہا، لیکن وہاں ہوتا تب کسی کو نظر آتا نا۔ یہاں وہاں کیا ڈھونڈ رہی ہیں بائی صاحبہ؟ میں اوزار ہوں، آپ کے اندر کا ڈر، اور ڈر کی کوئی ہیبت اور جسامت نہیں ہوتی۔ اب اتنی بڑی ڈان ہے، اتنی سی بات آپ کو نہیں معلوم؟ واپس استہزائیہ تبصرے کے ساتھ تمسخر بھرا کہکا کالی کمرے کی در و دیوار میں گونجا۔ کون ہو تم؟ بائی کمر سے بندوق نکالتی حلق کے بل چیخی۔ بتایا تو ہے اوزار ہوں۔ اس کا اطمینان بھرا لہجہ قابل ستائش تھا۔ پھر تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں بائی ہوں، چال سے پہلے توڑ نکال لیتی ہوں۔ تمہاری آنکھ مچولی کا کھیل ختم ہوا، تمہاری کمزوری، تمہاری بلبل میرے پاس ہے۔ بائی زہر لہجے میں ان دیکھے شخص کو دھمکاتے ارد گرد نظر بھی دوڑا رہی تھی۔ ہا 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 ہا، کمزوری، ہا ہا ہا۔ جواباً کمرے کی در و دیوار میں بھاری کہکا گونجا۔ افسوس بائی، صد افسوس، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں اب تمہاری عمر ہو چکی ہے۔ مطلب جس انسان نے تمہاری 7 نسلوں کی قبریں کھود ڈالیں، اس کے متعلق تم ایک معمولی سی خبر تک صحیح نہیں نکال سکی۔ بائی ریٹائرمنٹ لے لو۔ وہ دور بیٹھا بیک وقت 2 کمپیوٹرز پر انگلیاں چلاتا ہوا بائی کی تلملاہٹ سے محظوظ ہوتا نفی میں سر ہلاتا افسوس کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شعلے کی طرح بھڑک رہی بائی کا لہجے میں آگ تھا۔ یہ پہلا ایسا بائی کا دشمن تھا جو نہ صرف آئے دن بائی کا کروڑوں کا نقصان کرواتا رہتا، بلکہ ٹھیک ٹھاک تکنی کا ناچ بھی نچایا ہوا تھا۔ نہ جانے کون سی جدی بجتی دشمنی نکال رہا تھا کمبخت۔ مطلب یہ عمر رسیدہ خاتون، اس چھوکری مطلب بلبل کو کل مارنے کا آج مار دو، لیکن کم از کم اسی اوزار کی کمزوری تو نہ کہو یار۔ مطلب میرا نام دیکھو، اوزار، اوزار مطلب ٹول۔ اب ٹول میں احساسات ہوتے ہیں کیا؟ اور جب احساسات ہی نہیں تو کمزوری کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ شفقت سے کسی کی جان لینے کی صلاح دے کر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بائی کی صلاحیات پر خاموش ماتم کرنے لگا۔ اس کی اتنی ہمت! آزاد اس نادیدہ انسان کی شفقت پر زور سے مٹھیاں بھیج گیا۔ مسٹر وڑائچ، کام ڈاؤن، ہمارا کام اب ہونے ہی والا ہے، پلیز ڈونٹ لوز یور پیشنس۔ انایا نے دبی آواز میں اسے ہوش دلایا۔ ہو کون تم اور چاہتے کیا ہو؟ بائی غصے سے پاگل ہونے لگی تھی۔ اپنے ایسے چلاک دشمن کے بارے میں سوچ کر بائی کا اب دماغ پھٹنے لگا تھا، لیکن سراغ کوئی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ میں کون ہوں یہ بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، اور کیا ہوں یہ بتانے کا میرا کوئی موڈ نہیں، کیونکہ ابھی میرا موڈ تباہی فلم دیکھنے کا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ تو چلیں مجھے جوائن کریں۔ جیسے ہی اس پوری اسرار انسان کی آواز کی گونج بلند ہوئی، مستطیل نما ٹیبل جس کے ایک جانب انایا اور دوسری جانب آزاد کھڑا تھا، اس کے دائیں جانب کی مشرقی دیوار پر نصب LED اسکرین خود بخود نہ صرف روشن ہوئی، بلکہ سیکنڈ کی تاثیر سے اس روشن اسکرین پر بیک وقت کئی مقامات کے لائیو فوٹیجز چلنا شروع ہو گئے۔ ہر فوٹیج میں ایک عجب ہی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کوئی جنگل میں دوڑ بھاگ رہے لوگوں کا منظر دکھا رہا تھا، کوئی نیم اندھیرے میں کمرے کا نظارہ تھا، کوئی سنہرے بلب کی روشنی میں تیزی سے چاروں جانب پھیل کر بائی کے خزانے کو تباہ کر رہے اسلحے کاروں کی بھگدڑ کا منظر تھا۔
تو کوئی لال محل کے گرد تعینات بارودی اہلکاروں کا. کہیں گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ گونج رہی تھی تو کہیں وحشت ناک چیخیں. کہیں ڈر و خوف سے ادھمرے معصوم جانوں کو بازیاب کرا کر پولیس اہلکار بحفاظت باہر نکال رہے تھے تو کہیں بائی کے پالتو کتوں کو گھسیٹتے ہوئے جانوروں کی طرح پولیس وینس میں بھرا جا رہا تھا. بیک وقت اتنے خوف و وحشت میں ڈوبے مناظر، اتنی ملی جلی بھیانک دل دہلا دینے والی آوازیں سن کر مضبوط کھڑی عنایا کی انگلیاں کانپنے لگی تھیں. خود آدھا گھنٹہ پہلے تک اپنی اندھیری سلطنت کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لے کر آئی بائی محض 30 منٹ میں اپنی 30 سال کی محنت کو مٹی میں ملتا دیکھ معاف دماغ اور بے جان ٹانگوں کے ساتھ پیچھے کرسی پر گری تھی. ارے بائی دس از ناٹ فیئر. میرا فیوریٹ سین تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. اچھی بات نہیں یار. میرا فیوریٹ سین تو انجوائے کریں اپنے چہیتے اوزار کے ساتھ. تمام مناظر کو بہت دور بیٹھا وہ پراسرار شخص پوز کر کے رنوٹھے پن سے بولا. پھر ایک فلیش کے ساتھ دیوار واپس تاریک ہوئی. بس 1 سیکنڈ کی تاخیر کے ساتھ واپس اسکرین روشن ہوئی. اب کے اس بڑے سے پورے اسکرین پر ایک ہی جگہ کا منظر دکھایا جا رہا تھا. یہ منظر بائی کے فحاش فلم سیٹ کا تھا. وہاں کا ماحول اس قدر گھناؤنا تھا کہ آزاد اور عنایا اندھیرا ہونے کے باوجود ایک نظر میں شرم و حیا سے پانی پانی ہوتے نظریں جھکا گئے تھے جبکہ بائی آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی. شیرا اپنے سب سے وفادار بھروسے مند آدمی کو اپنی اتنی خفیہ جگہ پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ دیکھ صحیح معنوں میں بائی جیسی حاضر و شاطر دماغ عورت کا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا. ساکت پتلیاں بس چہرہ پر اٹکی تھیں جس کا ہمیشہ بے تاثر رہنے والا چہرہ غصے اور اشتعال کی تمازت سے اس وقت دہک رہا تھا. آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں. وہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں پولیس اہلکاروں کو حکم دے رہا تھا اور حیرت کی بات وہ اس کی سن بھی رہے تھے. ہم ماڈرن زمانے کے دشمن ہیں بائی صاحبہ. ہماری نظر میں جنگ جیتنے کے لیے میدان میں اتر کر مقابلہ کرنا اولڈ فیشن کہلاتا ہے. ہم فیشن کے دل دادا ہیں تو یہ عین شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر آپ واقعی میں دشمنی نبھانے کے گٹس ہیں آپ میں تو بس دشمن کے دماغ میں گھس کر اسی کی چال کو چپکے سے چرا کر موقع پر چوکا مارتے ہوئے چاروں خانے چت کر دو. پھر چٹ بھی تمہاری پٹ بھی تمہارا. ہاں 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 ہاں. پھر بتایا تو ہے میں اوزار ہوں، نہ پولیس کا نمائندہ نہ پبلک کا خیر خواہ. میں تو جذبات و احساسات جیسی کمزوریوں سے دور کی چیز ہوں. تو مجھے یا میری کمزوری کو ڈھونڈنے میں اپنے بوڑھے دماغ کو مت تھکاؤ. میں تو بس تمہاری بساط الٹ کر تماشائی بنا ہوا ہوں. کر تو سب تمہارے جرائم فہرست سے نکلے کردار ہیں. ہاں 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 ہاں. اوزار کا بھاری پر اسرار کہہ کر چاروں دیواروں سے ٹکرا کر بائی کی مفلوج سماعت پر دھماکے کی طرح گر رہا تھا. وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں میں جمائے پوری قوت سے چیخی. بیڈ لک بائی. تمسخر بھری آواز کی آخری گونج کے ساتھ اسکرین واپس تاریک ہوئی. ساتھ کمرے میں واپس وہی اندھیرا چھا گیا. بائی اپنی شکست پر غصے سے پاگل ہوتی ہاتھ آئی ہر چیز پھینکتی چیخنا چلانا شروع کر چکی تھی. عنایا آئی تھنک ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. کمشنر اکبر نے ہمیں اس طرح کی کسی سچویشن کے متعلق نہیں بتایا تھا. بائی کو پاگلوں کی طرح چیختی ہوئے بکتا دیکھ آزاد عنایا کی طرف جھکا. اسے اپنی فکر نہیں تھی. فکر تھی تو بس اپنے بھائی کی بیوی اپنے گھر کی عزت کی کیونکہ جس طرح موت بائی کے سر پر منڈا رہی تھی وہ پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتی تھی. ابھی وہ عنایا کو لیے سائڈ سے نکلنے لگا تھا کہ سامنے کا دروازہ کھلا اور احان سمیت کئی وجود تیزی سے اندر داخل ہوئے. چیخے چلا رہی بائی ریموٹ والے کھلونے کی طرح ساکت ہوئی. کھیل ختم ہو چکا ہے بائی. بچاؤ کی کوشش سوائے حماقت کے کچھ نہیں. تمہارے زیر استعمال ہر اڈے پر نہ صرف چھاپا پڑا ہے بلکہ پوری طرف تباہ کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی تم چاروں جانب سے پولیس سے گھری ہوئی ہو. احان بھاری قدموں بائی کی طرح قریب آتا ہوا بولا اور قبل اس کے وہ بائی کے ہاتھ سے گن لیتا. سیکنڈ کا کھیل تھا. بائی کسی ماہر ایتھلیٹ کی طرح گھومی اور آزاد کے سامنے کھڑی عنایا کو اپنے شکنجے میں ڈبوچ چکی تھی. بائی کا کھیل ختم کرنا اتنا آسان نہیں وردی والے. بائی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر بائی بنی ہے. وہ مچل رہی عنایا کو ڈبوچے خشونیت سے گرجی. نہیں بائی ہم تمہارے آدمی ہیں. حواس باختہ آزاد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن بائی کی عنایا کے کن پٹی پر گن رکھتا دیکھ قدم روک گیا. بائی کے بے اصول دھندے کا ایک ہی سنہرا اصول ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ مت سوچو کہ تم جس کی جان لے رہے ہو تمہارا کون لگتا ہے. اب اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو اس چھوکری کا خون قانون کے سر جائے گا. وہ احان کو بندوق اٹھا کر وارن کرتی عنایا کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی. ساتھ ہوشیاری سے دروازہ بھی مقفل کر گئی تھی. شٹ. میں نے کہا تھا کمشنر سر سے میری فیملی ممبرز کو انوالو نہ کریں.
आजाद ने जोर से दीवार पर मुक्का जड़ा। डोंट वरी, इस वक्त बाई की जान खतरे में है। वो अपनी ढाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमें जल्द से जल्द सबको इन्फॉर्म करना होगा। अहान जेब से फोन निकालता हुआ उजलत भरे अंदाज में बोला, जब तक इसके आदमी दरवाजा तोड़ चुके थे और अगले चंद मिनट के अंदर वो लोग कार लेकर अनाया के साथ जंगल की सिमत भाग रही बाई के ताकुब में थे। आज बरसों बाद वो एक बार फिर इस दहलीज पर खड़ा अपनी बाबे हाथ के वो 7 दिन का मंजर सुर्ख आंखों में इंतकाम की चिंगारियां लिया देख रहा था, जिसने इसकी जिंदगी से हर रंग नोचकर वहशतों का घोर अंधेरा भर दिया था। आज भी वो दर्दनाक चीखें, वो भयानक मनाजिर, वो अजियतनाक लम्हे इस पर नींद की देवी को मेहरबान नहीं होने देते थे। वो रूह को लर्जा देने वाले दहशतनाक मंजर आज भी इसके हावजे में रोज़े अव्वल की तरह अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ महफूज था। जब वो शाहीना बेगम को सपुर्दे खाक कर वहीं निढाल सा कवर पर बैठा न जाने कितनी देर तक इन्हें इस दुनिया से वापसी के लिए मनाता रहा था, जहाँ कोई लौट कर आने के लिए नहीं जाता। और तभी कुछ लोग वहां आए और कुछ समझने से पहले नशा पर खुशबू सुंघाकर इसकी मुजाहिमत का गला घोंट गए। और जब वो दोबारा होश में आया तो वो यहाँ था। इसके इर्द गिर्द का मंजर ऐसा घिनौना था कि पाकीज़ा माहौल में परवान चढ़ा इसका नन्हा जहन बुरी तरह झुंझुना उठा था। फिर तो हर आने वाले लम्हे इसके हिसाब पर क़यामत बनकर टूटे थे। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो 15-16 साल लड़का पूरी कुव्वत से चीखता अपने जिस्म को नोचने लगा था। कमरे के चारों दीवारों पर चश्मा फहाश अरियां तस्वीर और मुकाबिल दीवार में नसब बड़ी सी एलईडी चल रही घटिया मनाजिर बुरी तरह इसके अन्य जहन को सुन कर रहे थे। इस पर पूरे जिस्म पर रेंगती चूंटियां जो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद सारी रात इसके जिस्म को काटती रहती थी। मुझे जाने दो, भाई, भाभी, मम्मा, आज बचाओ प्लीज, मुझे जाने दो। आज कहाँ हो तुम मम्मा? तो बालों को नोचता मुसलसल चीख रहा था। फिर आस मुकाबिल ने इसके जबड़ों को अपने बेरहम अंगुलियों में दबोचा था, जिससे इसकी बड़ी सी दर्दनाक चीख बरामद हुई थी। छोकरे, तुझे इस नाम को भूलना होगा, वरना सारी जिंदगी इस अजियत को सहना होगा, समझा? भूलना होगा तुझे इस नाम को। बाई अपनी सफाक गिरफ्त से इसके जबड़े की हड्डी को बुरी तरह मसलती चबा कर गुर्राई। नीम जान वजूद के साथ वो मुजाहिमत करता चीखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन पे दर पे अजियतों ने इसके लागर जिस्म से जैसे सारी कुव्वत चढ़ ली थी। वो जल बिन मछली की तरह सिर्फ तड़प सकता था। इस बेरहम गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराना इसके बस में नहीं था, जबकि मुकाबिल इसे इसी तरह दबोचे अपने मातहत की जानिब मुड़ी थी। 4 दिन हो गए इस छोकरे को यहाँ आए, सबूत तो क्या, ये उस मनहूस का नाम तक नहीं भूला है। इसकी डोज बढ़ा दो और आज सारी रात ये टीवी चलेगा। मुकाबिल के सफाक हुक्म की फौरन तामील हुई थी और पलक झपकते ही बड़ी बेदर्दी से इसके बाजू पर इंजेक्शन से बो दिया गया था और दूसरे ही पल वो फर्श पर सर कटे कबूतर की तरह एड़ियां रगड़ता हुआ बुरी तरह तड़पने लगा था। जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। सर आर यू ओके? वो इन मनाजिर को जागती आंखों से देखता वापस चीखने लगा था, जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर झंझोड़ डाला। सर मैं हैमर, आर यू ओके? पसीने से तितर बितर खौफजदा नजरों से खुद को देखता वो मुतफक्किर हुआ। हाँ, हाँ, आई एम ओके। सब कैसा है? वो खुद को कंपोज कर चुका था। जी सर, यहाँ सब अंडर कंट्रोल है। आपकी हिदायत के मुताबिक बाजियाब हुई लड़कियों को खुफिया तरीके से जबकि मुजरिमों को मेन रोड से भेज दिया गया है, लेकिन एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? वो चौकन्ना हुआ। जी, बाई हमेशा की तरह चालाकी से ढाल बनाकर निकल चुकी है, लेकिन भाग नहीं पाएगी। हर तरफ हाई अलर्ट है। ये बस इसकी कमज़ोर सी कोशिश है। शिकस्त ने बौखला दिया है ना, सो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं जानता हूँ ऐसे में वो कहाँ जाएगी। वो सुनी अनसुनी करता तेजी से बाहर को लपका। पीछे हैमर मैसेज टोन पर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और मौसूल की खबर पे एक नज़र डालकर फौरन फार्म हाउस के बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ा, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो चुका था। चारों तरफ गूंज रही पुलिस सायरन की आवाज़ पर बुरी तरह बौखलाई बाई अपने माऊफ होते दिमाग को इस हालत में भी पूरी तरह हाजिर रखे हुए हकीकतन मजबूत आसाबी कुव्वत का नमूना पेश कर रही थी। अनाया को बेरहम गिरफ्त में दबोचे पूरी रफ्तार से ड्राइव करती वो आखिरकार लाल महल पहुंच ही गई थी। हालात की संगीनी देखते हुए इसे पूरा यकीन हो चला था, इस वक्त अगर इसके नजात की राह कहीं से निकल सकती है तो वो लाल महल से ही मुमकिन है। आखिरकार इसने लाल महल को इस तर्ज पर बनवाया ही ऐसे मौक़ों पर बरोए कार लाने के लिए था।
लाल महल के बाहर तैनात फोर्स के मुकाबिल भी बिना मुज़ाहिमत अपने गिरफ्त में पड़ी अनाया को इस्तेमाल करती हुई वो अंदर अंदर बढ़ी थी। तारीक और रोशन मगर सुनसान राहदारी से गुजरते हुए वो एक बड़े से सतून के पास रखे छोटे से गमले को लात मारकर साइड में लुढ़काती। बाई ने जोर से नीचे लात मारा था और बज़ाहिर मजबूत नजर आ रहा सतून बैक वक्त एक इंसान के गुजरने लायक बारीक दरवाज़ा खुल गया था। मन तो नहीं कर रहा तुम छल्ला लेकर घूमने का, लेकिन जब तक मेरी जान खुलासी नहीं होती तुझे नहीं छोड़ सकती। वो तनफर नजर बेतासुर चेहरे के साथ इसके साथ घिसट रही अनाया पर डालकर वो इसे घसीटती हुई तह खाने की सीढ़ियां उतरकर तारीकी में पूरी तरह डूबे तह खाने में अंदाजे से उजलत में कदम उठाती एक जानिब बढ़ने लगी। यकायक खट की आवाज के साथ पूरा कशादा तह खाना रोशन हुआ। बाई की तेजी से उठ रहे कदम बेसाख्ता एक लोहे के दरवाजे के पास जकड़े। बाई बाई बाई, मतलब इंसान की मौत इसे कहाँ कहाँ खींच लाती है यार। वो माकूला तो बिल्कुल सूटेबल है तुम पर। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। बिल्कुल साइड वाले लोहे का दरवाजा खुला और बजाय इंसानी वजूद लंबा चौड़ा स्याह साया साथ वही बहारी मुतासिफ आवाज खामोश फिजा में गूंजी। ओह, तो तुम यहाँ भी आ गए। चलो, जाते जाते तुम्हारे दर्शन भी हो गए। तुमसे हिसाब भी लेते जाती हूँ। आखिर बाई हूँ मैं। बाई का अजली नखुवत भरा अंदाज ऊद आया था। हिसाब, हा 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 हा। जोरदार कहके के साथ फर्श पर बना साया भी बड़ा हुआ था। मतलब वो दरवाजे के काफी करीब आ चुका था। हिसाब तो इस वक्त तुम बचे वक्त का, बल्कि सांसों का करो बाई। मेरे हिसाब के लिए तुम्हारे पास वक्त कहाँ है। वैसे भी तुम्हारे हिसाब की ही तो घड़ी है। ये आहट महसूस कर रही हो अपनी मौत की। दरवाजे से आधा ब्लैक शूज बाहर निकालकर वो पुलिस शख्स खामोश हुआ और बाय समेत अनाया भी दौड़ने की आवाज बासानी सुन रही थी। शायद अहान की टीम के साथ बहुत से लोग तेजी से तहखाने में आ रहे थे। टिक टॉक टिक टॉक। बाई, उल्टी गिनती शुरू करो। चलो, मैं भी साथ करता हूँ। 10, 9, 8, 7। वो ठहर ठहर कर गिनती करता भारी स्याह बूटों की दमक छोड़ता हुआ ऐन मुकाबिल निकल आया था। सर तपा स्याह रंग में डूबा ये ऊंचे पूरे कद का मालिक शख्स देखने में ही बेहद पुरस्कार था। देखो, करीब मत आना, मैं गोली चला दूंगी। करीब से करीब तर होती दौड़ने की आवाज और सामने मौत के साए की तरह खड़े औजार को देख बाई का चेहरा जर्द पड़ा। जुबान भी खौफ से लड़खड़ाई। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, ट्राई कर लो। इसका जवाब पुरसकून था। मैं इसे मार दूंगी। इसके रूखे जवाब पर बाई अनाया की कनपट्टी पर गन तान कर चीखी। लम्हा ब लम्हा मौत बाई को अपने करीब आती सुनाई दे रही थी। हाँ, तो मार दो। अब तक इस बोझ को लेकर किस खुशी में घूम रही हो। औजार की अजीज सफाकियत पर बाई समेत अनाया की आंखें फटी। इससे नागवारी से मुकाबले की खुदपसंदी की इंतहा को जांचा। वैसे भाई, तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड्स खासकर इस भूल भुलैया महल के मुतालिक जानकर मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। मतलब ब्यूटी विद ब्रेन सुन रखा था, बाय विद ब्रेन्स का नमूना देख तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन आज तुम्हारी अकल चोरी पर मातम करने को दिल कर रहा है। मतलब तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक मामूली सी बिजनेस वूमेन को ढाल बनाकर तुम यहाँ से बच जाओगी। खिलाड़ियों का यही मसला है, टेस्ट मैचेस में छक्के चौके लगाते हैं और फाइनल में 0 पर ऑल आउट। मुतासिफ मगर बदमजा अंदाज में वो यूं नरूठेपन से नफ़ी में सर हिलाकर बोला जैसे मुकाबिल मौत के जाल में उलझी बाई नहीं इसकी खाला मौसी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। रास्ता इसलिए साफ है क्योंकि बिजनेस वूमेन तुम्हारे कब्जे में है, जबकि रास्ता इसलिए साफ था क्योंकि औजार की ऐसी मर्जी थी। मैं चाहता था मौत से पहले तुम जिंदगी की भीख के लिए दर दर भटको, हाथ पैर मारो, वरना एक मगरमच्छ को दबोचने के लिए एक छोटी मक्खी कुर्बान भी हो जाए तो सौदा बुरा नहीं है। तनफ्फुर से अनाया की तरफ इशारा करता वो दांत पीस कर बोला। आज़ाद, मैं आपकी इमोशंस की कदर करता हूँ, लेकिन बाई के सर पर इस वक्त खून सवार है। बहुत खतरनाक है वो। आपका इसके सामने जाना ठीक नहीं। आप इस वक्त हमारी जिम्मेदारी हैं। तय खाने की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आज़ाद की रिक्वेस्ट पर आहान रसानियत से बोला, इस दिन का मैंने बरसों इंतजार किया है एसपी साहब। बस 5 मिनट बाई को अपना तारुफ देना चाहता हूँ। आज़ाद बोलकर रुका नहीं था, जबकि आहान को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। वो इस भिपरे हुए शेर की आंखों में चिंगारियां देख सकता था और कमिश्नर अकबर से इसकी कहानी भी सुन रखी थी। फाइनली खेल खत्म तुम्हारा बाई।
अकब से उभरी भारी कदमों की धमक और जहर में डूबे लहजे पर बाई बिदक कर इस जानिब मुड़ी। अब भागने की तो राह बची नहीं, सो सरेंडर कर दो। हर इंसान का वक्त और दौर आता है बाई। तुम्हारी जुल्म बर्बरियत का दौर ख़त्म होकर हमारा वक्त आया है, और क्या खूब आया है। लोगों की जिंदगियों को जूती की ठोकरों में रखने वाली आज अपनी मौत की ठोकर खाती कहाँ से कहाँ चली आई है। आज़ाद सुनहरी सुर्खी माइल आंखों में अजियतनाक मनाजिर की झलकियां लिए पॉकेट में हाथ अड़से मंजर आम पर आया था। तो तुम? बाई की आंखें फटी। हाँ, मैं सुल्तान वड़ाइच का पोता कमाल वड़ाइच और शाहीना वड़ाइच का बेटा, और वो लड़का भी जिसे अपने मफाद के लिए तुमने कातिल से बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके अलावा मेरी एक और पहचान भी है, अहमद बाई का एवी पार्टनर। याद आया, या मौत के खौफ ने यादाश्त छीन ली है? तो, तो तुमने धोखा दिया? पहले इसकी शनाख्त फिर इसके दूसरे इंकशाफ पर बाई भुंचका गई। धोखा नहीं, इसे बदला और इंतकाम कहते हैं। वो तस्वीर करने के अंदाज में नफ़ी में सर को झटका कर बोला, तुम्हारी तो हिम्मत मत करना बाई, वरना कानून को हाथ में लेकर तुम्हारे अपने हाथों से मौत के घाट उतारने की मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। बाई के पीछे का दरवाज़ा खुला था और जीन्स शर्ट पर गन ताने अनायना चिंगारती हुई बाहर आई थी। हसरत तो मेरी भी अधूरी है बाई। सुरंग का ढक्कन हटाकर शेरा धाड़ता हुआ नाजिल हुआ था। दूसरे लफ्जों में अनाया को डबोचे खड़ी बाई इंतकाम की आग में बरसों झुलस कर खतरनाक हथियार बने किरदारों में घिर चुकी थी। ताबीर की तलाश तो मुझे भी गुज़श्ता 5 सालों से है बाई। मेरी माँ की जागती आंखों के ख्वाब ने कभी मुझे सुकून से सोने ही नहीं दिया। बाई की गिरफ्त में ही अनाया बेखौफी से फनकारी, तुम? एडवोकेट नाहिद की बेटी, इसी एडवोकेट नाहिद का खून जिसने वड़ाइच खानदान के चिराग को बुझाने से बचाने के लिए तुम्हारी हवाओं का रुख इस वक्त मुखालिफ सिमत में मोड़ दिया जब हवाओं पर भी तुम्हारी जालिम हुकूमत थी। वो बेखौफी से गुर्राई, तुम सबके सब? हाँ, हम सबके सब वो हैं जिन्होंने तेरी वजह से बहुत झीला है। तुमने हम सबका बचपन जवानी सब तबाह कर दिया। अनायना बतदरीज आगे बढ़ती हुई बोली, हे करीब मत आना, मैं इसे मार। बाई, तुम भी जानती हो अब बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। जिस सुरंग से फरार होने के ख्वाब देखकर तुम यहाँ पहुंची हो वो अब तुम्हारी नहीं रही, मतलब तुम्हारा खेल खत्म। कबल इसके बाई मजीद धन गरज कर वक्त बर्बाद करती इधर उधर कई दरवाजे खुले थे। अपर सीढ़ियों से अहान और अहान की टीम दाएं जानिब के सुरंग से अरसलान की टीम, इसके साइड वाले सुरंग से एक और टीम, जबकि लास्ट वाले दरवाजे से अनायना की टीम बरामद हुई थी। आन की आन में 50 के करीब लोग बाई के सर पर मौत की तरह खड़े हो गए थे। अभी नहीं, अभी एक मोहरा मेरा है और एक मोहरा पूरी बसात पलट सकता है। बाई का जाम अब भी नहीं टूटा था। खूसट बुढ़िया, पैर तो तेरे वैसे ही कब्र में हैं। भरम की भीख के आगे चंद सिक्के जिंदगी के कशकोल में डालकर भयानक मौत को क्यों उकसा रही है? अनायना आंखों में चिंगारियां लिए हाथ के करीब खड़ी हुई। जासूस, आराम से, अनाया इसके कब्जे में है और अनाया मेरे भाई की बीवी, मेरी मोहसिन की बेटी है। आज़ाद जासूस को फॉर्म में देख दबी आवाज में सरजनिश कर गया। अगर बाई बाई है तो अनाया भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। जासूस बाई की गिरफ्त में बेखौफ खड़ी अनाया को देखने कुव्वत से बोली, बाई, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सो खुद को मत थकाओ। अहान तहम्मुल से बोला, रास्ता बाई खुद बनाती है। अब अगर कोई भी मेरी तरफ बढ़ा तो इस छोकरी का भेजा उड़ा दूंगी। दूर दूर हटो सब, एकदम दूर। बाई अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बाई, मैंने कहा अनाया को छोड़ो। आज़ाद तेजी से आगे बढ़ा, और मैंने कहा मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करो। बाई बल खाती नागन की तरह भिपर कर मुड़ी। सातों की साजिश थी। मौत के खौफ से हवास भागता बाई की बंदूक से 2 सनसनाती हुई गोलियां निकली थीं और फिजा में वड़ाइच की बुलंद चीख के साथ सकूवत छा गया, और गोली आज़ाद को पड़े हटाते आई अनायना के बाजू और पेट में बुरी तरह पेवस्त हुई थी। सब इस जानिब मुतवज्जे हुए। अनाया खुद को धक्का देकर भागती हुई बाई की पेट में कोहनी मारती दूर हुई। बाई ने बचाव के लिए इसका कोट थामना चाहा, जब बरवक्त औजार ने आगे बढ़कर बाई के साथ पीछे जाती तेजाब रूम के खुले दरवाजे में गिर रही अनाया को अपनी जानिब खींचा। फिजा एक बार फिर गोली के सनसनाहट और दर्दनाक चीख से गूंजी। आपके बाई के बंदूक से निकली गोली औजार के वजूद में पेवस्त हुई थी और चीखती तेजाब रूम के तेजाब से बने स्विमिंग पूल में गिरी बाई की थी। न जाने कितनों को अपने हुक्म से सरताबी करने को इस तेजाब के पूल में बेदर्दी से फेंक देने वाली बाई आज खुद इसमें गिरकर बुरी तरह चीख रही थी।
बर वक्त अहान लोगों की टीम से कई लोगों ने इसे रेस्क्यू किया था, लेकिन तेजाब सेकंड में अपना काम कर चुका था। लोगों की चीखें सुनकर तस्कीन हासिल करने वाली बाई की दर्दनाक चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी थीं, जबकि आज़ाद तेजी से जासूस को उठाकर भागा था। इस बीच अनाया को एक जानिब धक्का देकर औजार भी गायब हो गया था और जुल्मत की हुकूमत कायम कर मासूमों की जिंदगियों से खेलने वाली बाई का इख्तिताम वहीं हुआ था जहां से इसने अपनी फिरौनियत की बुनियाद रखी थी। सच कहती हूँ वड़ाइच, एक दिन बेमौत मारे जाओगे मेरे हाथों। वो नफी में सर हिलाती संजीदगी से इसे खबरदार कर रही थी या मुतला, वो समझ नहीं पाया। कोई नहीं, जिस दिन वड़ाइच की जान लेने का पुख्ता इरादा बन जाए ना, मुझे कंफर्म इत्तला कर देना। मैं भी अपना ज़ाती खानदानी बंदूक निकाल लाऊंगा, दोनों इकट्ठे ही किस्सा निपटा लेंगे। क्या रोज रोज का खड़ाक पालना। वो यूं इत्मीनान से बोला जैसे कोई गैर जरूरी काम फुर्सत से निपटाने की बात हो रही हो। फिर अब से तुम्हारी जिंदगी मेरी इमानत रही वड़ाइच। अब इस सीने में या तो अनायना के देसी कट्टे की गोलियां उतरेंगी या फिर कोई नहीं। ख्याल रखना। वो क्या है ना, मैं बहुत मतलबी हूँ। वो हौले से मुस्कुराई। अपनी इमानत की खुद हिफाजत करना। आज़ाद ने फराग दिली से पूरी जिम्मेदारी इस पर डाल दी। कहा था ना वड़ाइच, इस सीने में या तो अन्ना की गोली उतरेगी या फिर किसी की नहीं। वो स्ट्रेचर पर दराज खून में तर करहाते लबों पर मुस्कुराहट सजाए मुश्किल से झटके खाते हुए इसे अपने अल्फाज याद करा रही थी और वो इसी के खून में रंगे हाथों से स्ट्रेचर थामे लब भींचे अपने सुर्खी माइल आंखों में इसी का दर्द समोए बेबसी से घूरता स्ट्रेचर लेकर अंधाधुंध वार्ड बॉयज की मदद से आगे बढ़ रहा था। मैं तुम्हारे बारे में ठीक था जासूस, तुम पागल हो। इस हिमाकत के लिए सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, सुना तुमने? जवाबन वो हाँपता हुआ जख्मी शेर की तरह हलक के वर्द दहाड़ा। वो आज भी इसके गुस्से की परवाह किए बगैर तकलीफ के बावजूद कुर्ब से मुस्कुराई थी। ये भी कहा था ना कि ना किसी का उद्धार नहीं रखती। अपनी जिंदगी मेरे अब्बा ने जो गलत की सबका भुगतान मैंने सूद समेत भरा। तुम्हारे अब्बा की मौत के जिम्मेदार मेरे अब्बा की लालच थी। आज वो भी हिसाब बेबाक हुआ। अब मेरा अब्बा बेकसूर है। मुझे कुछ हो जाए तो वो बीमार है। कम से कम बेसहारा समझकर इसका वो वाकई बहुत बहादुर थी। इतने दर्द में इतना बोल रही थी, लेकिन आगे दर्द की शिद्दत ने कराह निकाल दी थी। ठीक नहीं किया जासूस, ठीक नहीं किया। आईसीयू के बाहर स्ट्रेचर रुकते ही आज़ाद इसका गाल थपथपाता शिकवा करता चीखा। आज वड़ाइच की सुनहरी आंखों में शरारत रंग भरे जिच करते तासुरात के बजाय कुर्ब था, अजियत थी। इसका दर्द और आंसू भी थे। मेरे अब्बा को माफ कर देना वड़ाइच। इसने बड़ी हिम्मत से अपने खून में लथबथ दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ जोड़ने से पहले ही सांसों की माला टूटी थी। वो झटका खाकर वापस गिरी थी। अना! वो पूरी कुव्वत लगाकर चीखा था, लेकिन इसकी आंखें बंद और जिस्म साकित हो चुका था। सर प्लीज, इससे आगे आप नहीं जा सकते। वार्ड बॉय जबरदस्ती से पीछे धक्का देता स्ट्रेचर धकेलता हुआ तेजी से आईसीयू में दाखिल हो गया, जहां पहले से डॉक्टर तैयार खड़े थे। अना, वड़ाइच हेट्स यू डैम इट। आईसीयू डोर केस के मुंह पर बंद हुआ था और वह दहलीज पर घुटनों के बल गिरता चला गया। वो अजीबोगरीब उस जुबान इस्तेमाल करने वाली, इसके चाम से मुतासिर ना होने वाली, इसकी सुनहरी आंखों से बचाए सहरज़दा होने के चिढ़ जाने वाली, इसकी कुर्बत में कंफ्यूज होने के बावजूद जंगली बिल्ली बन जाने वाली, हवा वक्त मार धाड़ को तैयार रहने वाली, देसी कट्टा लेकर वड़ाइच को धमकाने वाली जंगली जासूस अंदर आईसीयू में अपनी उखड़ी सांसों के साथ वड़ाइच की सांसें भी ले गई थी। अपनी थम थम कर चलती धड़कनों के साथ वड़ाइच की धड़कन भी बेतरतीब कर गई थी। वो हारे हुए जवारी की तरह जीत कर भी वहीं पड़ा था।